داتا دربار پہ اب 120 روپے ریٹ ہو گیا جوتیوں کے جوڑے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اس کی حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ اب داتا دربار کی جوتوں کے ریٹ بتا رہا ہے، ایک جوڑے کے 120 روپے ریٹ ہے۔ بھئی وہاں جو داتا دربار پہ پیسے لیے جاتے ہیں وہ ٹھیکہ حکومت دیتی ہے۔ داتا دربار حکومت کے انڈر میں آتا ہے، اوقاف میں ہے یہ، اور یہ پیسے سارے حکومت لیتی ہے، اور پھر آپ لوگ پلتے ہیں ان پیسوں سے۔ حکومت آپ لوگوں کو پینشن دیتی ہے، اس میں سے پیسہ داتا دربار کا بھی ہوتا ہے جن پر آپ بھونک رہے ہیں۔ کل تک بابے حفاظت کرتے تھے اور چور اندھے ہو جاتے تھے، اور اب یہ حالت ہے کہ 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے، انہوں نے، وہ خود بریلوی ہیں وکیل، وہ دیکھ کے ہی نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھی جو لوگ عرس پہ آتے ہیں ذرا دھیان سے رہیں، 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں داتا دربار پہ۔ یہ ایک کرامت ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، کسی ولی کی کرامت ہے۔ بلکہ ایسا یہ حدیث میں بخاری میں ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو مصلح کرنے کے لیے آئے کافر، تو بھیڑوں نے گھیرا پا لیا۔ بھیڑیں کافروں کو حضرت عاصم کی لاش کے قریب نہیں آنے دیا، یہ ان کی کرامت ہے۔ اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ان کا سر دھڑ سے جدا کیا جاتا ہے، وہاں کرامت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب کرامت سے دنیا نہیں چلتی، لیکن کرامت ہے، کرامت کا انکار گمراہی ہے۔ دنیا میں اسباب ہیں، دنیا میں آپ نے انظام کرنا ہے، لیکن کرامت کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ کرامت سے دنیا نہیں چلتی۔ اللہ اپنے محبوبوں کو یہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اب کریں گے آپ بخاری کا انکار کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تو پیاسے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور دوسری طرف بخاری میں ہے ایک صحابی کو انگور مل رہے ہیں، قید میں مل رہے ہیں۔ اب آپ کریں انکار کہ نہیں کرامت ہے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ظہور ہے، تو یہی کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے دربار سے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ جیسے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اب آپ جوتوں کے ریٹ بتا رہے ہیں۔ جناب علی وہاں 120 ریٹ ہے اور ہم نہیں لیتے۔ تو یہاں پر اللہ کا شکر ہے ہر چیز کا ٹوکن آپ کو ملتا ہے اور اس کے اوپر پیسے چارج نہیں ہوتے، ورنہ ہر اتوار کو 400-500 لوگوں سے ہم جوتی کے جوڑے کے اوپر اگر 100 روپیہ چارج کریں، داتا دربار تو 120 ریٹ ہے، ہم 100 روپیہ کر لیں تو آپ ذرا رقم گنے کتنی بنتی ہے۔ لیکن یہ کوئی حرکت نہیں کرتا ہے، اپنی جیب سے ناشتہ بھی کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور توحیدی لنگر بھی آپ کو ملتا ہے۔ ہم یہ حرکت نہیں کرتے، ہم پیسے نہیں لیتے، تو وہ داتا رحمۃ اللہ علیہ پیسے لیتے ہیں، کوئی عالم لیتا ہے، کوئی مفتی لے رہا ہوتا ہے، وہ حکومت لے رہی ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو پھر حکومت پال رہی ہوتی ہے، جنہوں نے پوری نوکری بھی پوری نہیں کی، جن کا کام تھا کہ لوگوں کو نئی ایجادات دینی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں انجینئر ہوں، آپ نے کون سی ایجادات کی ہیں بتائیں؟ حکومت کا پیسہ کھایا، ابھی بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ حکومت آپ کو داتا دربار کے نام سے پال رہی ہے، وہ حکومت نے وہاں بندے بٹھائے ہوئے ہیں، آپ بھونک رہے ہیں داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ہم اپنے پیسوں سے۔ پھر تیرے کون سے پیسے ہیں؟ تیرا کہنا ہے کہ میری 90,000 روپے میری انکم ہے، تو 90,000 سے تو لوگوں کو ناشتہ بھی کراتے، 500 لوگوں کو ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے۔ کوئی عقل مند اس بات کو مانے گا؟ جھوٹ بولتا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے۔ آپ کی سورس آف ارننگ کیا ہے؟ میری سورس آف ارننگ جو ہے وہ میری پینشن ہے، آلموسٹ 55,000 کے قریب، پلس میں نے اپنی جاب کے دوران اور پلس میری جو فیملی کی سیونگز تھی اس کو ملا کے اسلام آباد میں گھر بنایا تھا، اس کا آلموسٹ 40,000 کرایہ آتا ہے، اور یہ مل کے آلموسٹ بن گیا 90,000۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میرے 2 بھائی انگلینڈ میں نیشنلٹی ہولڈر ہیں، وہ بھی گھر میں خرچہ بھیجتے ہیں میرے ماں باپ کو، تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے۔ اس کی زبانی آپ نے سن لیا، 90,000 ان کی انکم ہے، تو 90,000 میں گزارا ہو رہا ہے، اس کا الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے۔ جس کا گزارا ہو رہا ہے اب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو ناشتہ بھی کراتا ہوں، 500 لوگوں کو، میں جناب ان کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، اور اکیڈمی کے اخراجات کتنے ہیں؟ بجلی ہے، گیس ہے، یہ ایسیاں چل رہی ہیں، تو 90,000 والا بندہ جس کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے وہ سارا کچھ کرے گا؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا شاگرد عینی شاہد وہ کیا کہتا ہے، دیکھیں ذرا۔ سب سے پہلے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ، دین سے 1 روپیہ کمانا بھی حرام تھا، پھر جائز ہو گیا، عورتوں کی تصویریں آنا یوٹیوب پہ، یہ بے حیائی پھیلانا ہوتا ہے، بعد میں یہ بھی حلال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کا میں خود عینی شاہد ہوں، عینی شاہد، یہ کہتے ہیں نا کہ میں کسی سے چندے وغیرہ نہیں لیتا اپنی اکیڈمی میں، ان کا یہ دعویٰ کہ میں کسی سے کوئی تحفے وغیرہ نہیں لیتا، تحفے تو اب لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ بھی نہیں لیتے تھے۔ چندے کی بات آئی ہے، میرے سامنے سیچرڈے والا دن تھا، آئس فیکٹری کے اوپر علی بھائی کی اکیڈمی میں لیکچر ہو رہا تھا، ایک بندہ آیا لیپ ٹاپ لے کے، اس نے بولا کہ انگلینڈ سے آپ کے لیے گفٹ آیا ہوا ہے،
अली भाई ने बोला यार नहीं 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 मैं तो चंदे नहीं लेता, मैं तो इस तरह की चीजें नहीं लेता, ये तो उलमा लेते हैं, मैं तो हराम की कमाई नहीं खाता, मैं ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्हें बोला मैं तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम भी इम्प्रेस हो गए कि यार बड़ी बात है कि अली भाई ने लैपटॉप नहीं लिया और उसको रद्द कर दिया। आप यकीन माने सैटरडे का लेक्चर खत्म हुआ जब सारे लोग चले गए, क्योंकि हम उसके शुरू के साथी से थे, हम अली भाई के साथ बैठे रहते थे। 2-3 घंटे बाद भी, लेक्चर खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन आंसर वगैरह करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। जिस तरह अवाम नास चली गई, उस लैपटॉप वाले भाई को बोला कि भाई लैपटॉप का रद्द भी नहीं किया जा सकता, अच्छा नहीं लगता कि मैं तोहफे का इनकार कर दूं, आप ये लैपटॉप लेके हमारे फरहान भाई जो एडिटिंग का काम करते हैं आप उनको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो वो एक लेक्चर से पहले अवाम नास के सामने मैं इसको हराम समझता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जिस तरह लेक्चर खत्म हुआ, लैपटॉप पकड़ के फरहान भाई को उठा दिया। और इनकी जो आइस फैक्ट्री के ऊपर, जो आइस फैक्ट्री के ऑनर है, देखिए ना तो इनकी एकेडमी अपने पैसों से है, ना उधर चाय पानी का निजाम अपने पैसों से है, ना इनका पंफलेट वाला काम अपने पैसों से है। कहते हैं कि ये उलमा जो है अवाम नास के पैसों पे पलते हैं, उनसे चंदे लेके पलते हैं, अपने जेब से ये 1 रुपया भी नहीं लगाता। एकेडमी उस भाई ने इसको फ्री दी हुई थी आइस फैक्ट्री के ऊपर। चाय पानी का निजाम उस्मान भाई करते हैं, और जो एसी लगे, गर्मियों में एसी लगाए गए इसकी एकेडमी के ऊपर, उसके भी पैसे हमसे मांगे गए कि हमने जो एसी लगाया, स्प्लिट एसी लगाया, आप इनमें कंट्रीब्यूट करो, हम सारों से पैसे मांगे गए। तो भाई आप अवाम नास को क्यों कह रहे हो कि मैं तो पैसे लेता ही नहीं हूँ, जब हमसे आपने पैसे भी मांगे, लोगों से चंदे भी एक्सेप्ट कर रहे हो। और इमादुल इस्लाम तो अली मिर्जा को छोड़ चुका है, इमादुल इस्लाम ने दावा किया कि अली मिर्जा की उस्मान भाई के पास चंदा बुक मौजूद है जिसमें वो लिखते हैं कि आज इसने इतने लाख रुपए दिए, इसने 50,000 दिए, इसने 30,000 दिया। ये सारी चीजें नोट होती हैं। और अवाम नास को बेहयाई का दावा, बाकी उलमा को कहना ये बेहयाई फैला रहे हैं, चंदे ले रहे हैं, और ये सारे काम ये वो खुद कर रहे हैं। इसकी अकेडमी में होती है, और मैं खुद यानी शायद झूठे पे अल्लाह की लानत अगर इससे हमसे पैसे ना मांगे हो। और ये तोहफे, लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले चीज हराम थी, लैपटॉप लेना हराम था, लेक्चर के बाद वो चीज हलाल हो गई। जब अवाम नास चली गई, अब देखा कोई कैमरा बंद हो चुका है, कोई मुझे नहीं सुन रहा, अब ले लो लैपटॉप। जी दोस्तों, आपने देखा कि चंदे भी लेता है, चंदा बुक्स भी रखी हुई है इसने, लोगों से एसी के नाम पर पैसे भी खुद कह रहा है। मैं कह रहा अल्लाह की लानत तो मुझ पर कि मैं झूठ बोलूं। इसका शागिर्द कह रहा है चंदे भी लेता है, सारा कुछ करता है, और भौंकना होता है इसने अल्लाह के वलियों पर और औलिया कराम। अल्लाह की खानकाह है, ये तौहीद के लिए बनाई गई है। जो अल्लाह की खानकाह है, तो अल्लाह की खानकाह में इस तरह की तौहीद बयान की जाती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान करेंगे तो नबी की गुस्ताखी होगी। ये शैतानी तौहीद, अल्लाह की खानकाह में शैतानी तौहीद बयान की जाती है। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। नबी पेशाब नहीं रोक सकते, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। इस गुस्ताख ने लोगों को ये सिखाया हुआ है, अंबिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी। इसके छोकरे इस गंदी खानकाह से क्या सीख के आते हैं ये भी जरा देख लें। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। इससे बढ़कर कोई गंदी खानकाह होगी जहाँ से गंद लेके आते हैं कि नबी को गाली दो हम तुम्हें पैसे देते हैं। इससे बढ़कर कोई गंदा आदमी होगा जो जिस तरह की तालीम दे रहा है। और इस वीडियो पर 66,000 व्यूज़ थे और सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स थे मिर्ज़ा के चेलों के। इस बंदे को अप्रिशिएट कर रहे थे जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि तुम नबी को गाली दो। बताएं वो सारे काफिर हुए कि नहीं हुए? जो इसको मानेगा वो काफिर हो जाएगा, गुस्ताख हो जाएगा। और इतने 2 नंबर इसका शागिर्द कहता है कि मुझे कहीं भी दिखा दो कि अली भाई ने कहा हो कि कादियानियों का ज़बिया, फिर हम आपकी बात मान लेंगे। चलो वो भी देख लो। कि यार पहले तो मुझे कोई एक वीडियो ये दिखाओ जिसमें इंजीनियर साहब ने ये कहा हो कि जी कादियानियों की कुर्बानी यानी कादियानियों का ज़बिया हलाल है। कोई एक वीडियो जिसमें यही स्टेटमेंट दी हो। आपने किसी चीज से अखज़ नहीं करना, वरना हम भी अखज़ करेंगे कि उसका ये मतलब नहीं था। रुको जरा,
सबर करो। किताब का क्या? हाँ, सूरत अल-माइदा में अहले किताब की औरतें भी हलाल है, ज़बिया भी हलाल है, अगर अल्लाह का नाम लेके हो तो। अल्लाह का नाम लेके हो, अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो मुसलमान का भी हलाल नहीं है। तो अहले किताब का अगर ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी हलाल ही होगा। तो अहले किताब का अगर ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी हलाल ही होगा। अब मान लेंगे, वाज़े तौर पर कह रहा है कि हाँ कादियानियों का ज़बिया भी हलाल है, क्योंकि वो अहले किताब से बेहतर हैं। अहले किताब का हलाल है तो इससे ये भी हलाल है। मुसलमानों के नज़दीक इजमाई तौर पर कादियानी काफिर है। काफिरों को मुसलमान कहने वाला वो ख़ुद काफिर हो जाता है। तो मुसलमानों के साथ इसकी दुश्मनी है और कादियानियों के साथ इसकी क्या है, मोहब्बत है। ये है वो बदबख्त जो कादियानी को सपोर्ट करता है। जो मुसलमान कादियानियों के ख़िलाफ़ काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ इस बकवाज़ात करता है और काफिरों से मोहब्बत करता है, मुशरिकों को आई लव यू कहता है। ऐसी खानकाह है ये। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और आजकल वो जर्मनी में है, वहीं पे उन्होंने शादी की है, वो वहीं से अपनी वीडियोस भी अपलोड करते हैं और माशाल्लाह उनके ऑलमोस्ट 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कि एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूँगा कि मैं पर्सनली आई लव यू, अल्हम्दुलिल्लाह। ध्रुव राठी का जो चैनल है ऑफिशियल, वो सब्सक्राइब करें। ये तौहीदी खानकाह है जिसमें लोगों को बताया जा रहा है, अपने मानने वालों को बताया जा रहा है कि मैं ध्रुव राठी से मोहब्बत करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू, अल्लाह की नेमत। तो एक मुशरिक अल्लाह की नेमत, अल्लाह फरमाते ये नजस है, ये अल्लाह के दुश्मन है। अल्लाह फरमाते जो मोमिन है वो मुशरिकों से मोहब्बत नहीं करेंगे, चाहे वो उनके भाई हों, चाहे उनके ख़ानदान वाले हों, चाहे उनके वालिदैन हो। मुशरिक हों, मोमिन उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे। ये कैसा बंदा है जो उस मुशरिक से मोहब्बत कर रहा है, आई लव यू कह रहा है, हाफिज़हुल्लाह कह रहा है, अल्लाह की नेमत कह रहा है। ये इस खानकाह से गंद आ रहा है, इस गंदे से बचें, ऐसी गंदी खानकाहों से बचें जो जूतों पर आके रुके हैं। जनाब हम जो है जूतों का रेट नहीं लेते, हम ले तो इतना हो जाए, बस दाता रहमतुल्लाह अलैह नहीं लेते। वो आप हुकूमत ले रही होती है जिसे आप पल रहे होते हैं, और आप पैसे लेके लोगों को खिला रहे होते हैं जिसको आप हराम कह रहे होते हैं कि चंदा लेना हराम है। पे वो चंदा लेके आप लोगों को खिला रहे होते हैं, यानी अपने फतवे से लोगों को हराम खिला रहे होते हैं, हराम पिला रहे होते हैं। आप जिस एसी के नीचे बैठे होते हैं वो भी हराम के पैसों से आती है, इसलिए हरामी बातें आप करते हैं और आप अपने फतवे से हरामी बनते हैं। दिन रात आपके मुंह पे कालक मिली जाती है, आप अपनी बीवी से जब मिलते हैं तो हराम कारी करते हैं, क्योंकि आपका निकाह आपके फतवे से टूट चुका है। अब इससे अगली बात है, जो लोग वर्डिक्ट देते हैं ना किसी के बारे में कि इस पे अल्लाह का अजाब आ गया, ये कलमात कुफर है किसी शख्स के बारे में बोलना, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्मुल गैब के साथ है। हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि इस पे अल्लाह का अजाब आया है, ना कोई शख्स ये वसू के साथ कह सकता है किसी के बारे में वही की तईद के बगैर कि इस पे अजाब आया है। चाची भी गई, ओए चाचू पहले चाची ना निकाह दोबारा कर, फिर मुरीद दोबारा कर। चाचू तेरी चाची गई, हाँ हाँ, कलमे कुफर बोलने से निकाह टूट जाता। एक ना ली, दूसरा औलाद मैं मंगोला दिया। हाँ, तो सूफी भी मंगोला ने वड्डे, अल्लाह की तरफ से अजाब बन के नाजिल हुए मंगोल। बाकी ये अजाब इलाही मुसलमानों के ऊपर नाजिल हुआ मंगोलों की शक्ल में। ऐसे हरामियों से बचें जिसने खुद ये फतवा दिया कि हम ये नहीं कह सकते कि इस पर अजाब आया है, कलमा कुफर है। इसने ये फतवा दिया कि कलमा कुफर से निकाह टूट जाता है, और इसने खुद कहा कि मंगोल अजाब बन के आए, तो इसने कलमा कुफर बोला, इसका निकाह टूट गया। जब ये मीर से मिलता है हराम कारी करता है। ऐसे हरामियों से बचे जिनका हाल फेल हराम कारी है और इसने सिखाना भी हराम कारी है, तो ऐसे हरामियों से बचें आप।